ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵੈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਔਸਤਨ 5000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 80% ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ CBSE ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਨੇ। CBSE ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ CBSE ਵੱਲੋਂ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ CBSE ਆਪਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਬੜਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBSE ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ 2 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 48 ਸੈਕਸ਼ਨ, 48 ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਆਪਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। 25 ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ 30 ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਪਰੰਤੂ ਪਰੰਤੂ CBSE ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਕੋਲ 48 ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਚਲਾ 25 ਸੈਕਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ 26 ਸੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 75,000 ਪਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਭਰ ਕੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਸੀਗੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ 4 ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਟੇਕ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਂਕਸ਼ਨਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੁਬਾਰੇ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ CBSE ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੀਜਨਲ ਆਫਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਾਖਲ, ਇਹ 45 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ CBSE ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਦੀ ਸੀ 45 ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਸਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10+2 ਤੱਕ 45 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 40 ਕਰੋ, 40 ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ।
ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰਿਨੋਨਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ CBSE ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ CBSE ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ जी। नमस्कार जी। ये जो सिंह साहब ने हमने बताया आपको, मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक एग्जांपल के साथ करता हूँ कि जैसे किसी स्कूल के 10वीं के अंदर 3 सेक्शन है अभी और 9th में 4 सेक्शन है। जैसे वो अगले साल 4 सेक्शन, क्योंकि अभी 4 सेक्शन है, 10वीं 3 सेक्शन है, जैसे वो 10वीं में जाएंगे तो CBSE कहता है कि 3 सेक्शन लेंगे, अलाउ करेंगे, हम 4 सेक्शन नहीं करेंगे। पीछे से अगर 4 सेक्शन आ रहे हैं वो 3 सेक्शन पे आकर के वो कहते हैं 75,000 रुपये दे दो, हम अलाउ कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पैसे दे दें तो सेक्शन अलाउ हो जाते हैं, अगर हम पैसे ना दें तो चैलेंजेस है। हमने रिप्रेजेंटेशन दिया, सेक्रेटरी साहब से मिले, जो भी कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनसे मिले। उस स्थिति के अंदर हमने एक ही चीज़ कही है कि पूरे ये प्रॉब्लम केवल हरियाणा, पंजाब या चंडीगढ़ की नहीं है, पूरे इंडिया की प्रॉब्लम है। और तमिलनाडु के अंदर भी हाई कोर्ट में लोग गए हैं, हम लोग भी कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं, पंजाब भी कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं, चंडीगढ़ भी चैलेंज कर रहे हैं, ताकि गवर्नमेंट के ऊपर इस बात का कहा जाए कि जो गलत है उसको करेक्ट किया जाए। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि 1.5 एकड़ 2 एकड़ स्कूल चलाने के लिए CBSE कहता है कि 50 सेक्शन या 55 सेक्शन या 48 सेक्शन आपने स्टार्ट करने हैं। कोई नया स्कूल स्टार्ट करता है, जब स्कूल में 1.5 एकड़ की लैंड है, 48 सेक्शन चालू होने हैं, और उसके बाद जब नया स्टार्ट करता है पहले साल तो 48 सेक्शन हो नहीं सकते, उसके पास 30 सेक्शन है या 20 सेक्शन है। अगले साल स्ट्रेंथ बढ़ती है, नर्सरी क्लास में या किसी क्लास में एडमिशन बढ़ते हैं, 30 के 35 सेक्शन हो गए। वो कहते हैं ये 5 सेक्शन पे आप 75,000 रुपये दो, लेकिन ऑप्टिमम यूज़ तो हमारे पास 48 का है, जो कि बाई नेचुरल 48 तक, तो 48 के बाद आगे जाते हैं तो बात कुछ लॉजिकल लगती है और समझ आती है। ये भी एक हमारा बड़ा कंसर्न, क्योंकि बड़े इलॉजिकल से कंसर्न उठाए हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि CBSE केवल एक एग्जामिनिंग बॉडी है, जैसे सिंह साहब ने बताया, और सरकार एजुकेशन स्टेट का सब्जेक्ट है, और हमारे ऊपर सारे के सारे रूल रेगुलर स्टेट के लगते हैं। और स्टेट ने कहीं पर भी बाइंडेशन नहीं दी है कि आपने इतने बच्चे पढ़ाने हैं या इतने बच्चे कम करने हैं, क्योंकि उसके अंदर आपको एक बच्चे के अंदर कितना स्क्वायर फीट एरिया चाहिए वो प्रिस्क्राइब किया हुआ है, उसको हम फॉलो करते हैं। उसके अंदर कहीं कहीं क्वेश्चन करते हैं, अगर कहीं गलती पर होंगे करेक्ट करेंगे, लेकिन पैसे जोड़ के मान लो 75,000 रुपये एक सेक्शन का हुआ, अल्टीमेटली ये पैसा डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो पेरेंट्स के पास ही जाएगा। एक तरफ हम कहते हैं बच्चे के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर पैसे का बर्डन, आर्थिक बर्डन कम किया जाए, और दूसरी तरफ सरकार हमें मजबूर करती है, अदरवाइज पैसा कहीं और से तो आएगा ही नहीं, क्योंकि सारे के सारे स्ट्रक्चरिंग इस तरीके से हुई पड़ी है। तो उस बात को लेकर के हम तीनों संस्थाएं कोर्ट में जा रहे हैं, हमने केस तैयार कर लिया है। और तब भी अगर CBSE नहीं मानती है, हमने तो यहाँ तक अभी वर्बली कहा है, लिख करके हम कहेंगे, अगर CBSE, ये बात जो मैं कहने जा रहा हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, CBSE अगर हमारी इस बात को नहीं मानती है, हमारे कम से कम 3,000 मेंबर हैं तीनों संस्थाओं के अंदर, हम सारे के सारे ICSE में स्विच ओवर कर सकते हैं। और हमारे जो स्कूल हैं वो सारे के सारे बिल्कुल अच्छे अपने एरिया की सबसे बढ़िया और बड़े स्कूल हैं, वो सारे के सारे हम स्विच ओवर भी कर सकते हैं। क्योंकि CBSE के पास जब भी हम वो अगर हमसे कोई कहते भी क्वालिटी एजुकेशन के लिए आप ये काम करो, अब डमी स्कूल बने हुए हैं, उनको लेकर के हम कहते हैं आपके अटेंडेंस कहीं और स्कूल में चल रही है, बच्चा कोटा में पढ़ रहा है और नाम उसका A स्कूल B स्कूल में है, हम उसका विरोध करते हैं, उस बात को मेंशन करते हैं, उसका कोई कंक्रीट सॉल्यूशन CBSE की तरफ से हमें नहीं मिल पा रहा है। तो उस लेवल पे, क्योंकि राइट डायरेक्शन में एजुकेशन देने के लिए कुछ ना कुछ नियम हमारे ऊपर लागू होने हैं,
वही नियम कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर, जो अधिकारी हैं उनके ऊपर भी लागू होने चाहिए, ताकि कि एक सही दिशा के अंदर काम आगे बढ़ सके। धन्यवाद। आगे और एक और चीज़ है, अभी आपने पीछे सुना होगा कि यूपी के अंदर आजमगढ़ के अंदर एक केस हुआ है। उसके लिए हमारे स्टेट प्रेसिडेंट श्री एस गोसाई जी प्रकाश डालेंगे। वो एक मुद्दा है। गोसाई सर। प्रेस से आए सभी अतिथियों का मैं अभिनंदन करता हूं। मैं पिछले करीब 10 एक मिनट। मुझे शिक्षा से जुड़े हुए 1965 में मैं अध्यापक बना था और कई परिवर्तन मैंने शिक्षा के क्षेत्र में देखे हैं। 1986 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें मैं एक सक्रिय मेंबर रहा हूँ। इन परिवर्तन को देखते हुए पिछले 10-15 सालों से मैं देख रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ एक रोष सा लोगों में बढ़ रहा है और उसका कई कारण हैं बढ़ने के। क्योंकि लोग चाहते तो क्वालिटी एजुकेशन है, पर थोड़ा सा क्वालिटी देने के लिए उनको फीस देनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार के पास धन भी है, साधन भी है। इसके बावजूद भी अगर सरकार क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रही है तभी प्राइवेट स्कूल पनपे हैं। तो वो जो एक रोष बिना बात के जो समाज में पैदा किया गया है, उसी के तहत स्कूलों के जरा से भी अगर कहीं पर किसी स्कूल के खिलाफ अगर किसी को बोलने का मौका मिलता है तो उसको इतना बढ़ा चढ़ा करके इतना बड़ा आंदोलन तैयार कर दिया जाता है कि स्कूल वालों को अपने काम में ध्यान देने के बजाय अपने आप को बचाने में बहुत समय बिताना पड़ता है। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में एक विद्यालय में आज से 4 दिन पहले एक छात्रा ने आत्महत्या कर दी। 3री मंजिल से कूद गई वो, कारण उसके पास एक मोबाइल फ़ोन मिला और मोबाइल फ़ोन में कुछ ऐसे उसके जो मैसेजेस थे जिसके लिए कि प्रिंसिपल ने उसको, टीचर ने उसको डांटा होगा। प्रिंसिपल के पास ले गए, प्रिंसिपल ने अपने दफ्तर के बाहर उसको खड़ा रखा थोड़ी देर, पेरेंट्स को खबर की। पेरेंट्स ने कहा जी मुझे दूसरे बच्चे को लेने के लिए जाना है, मैं बाद में आऊँगा। इस बीच बच्चा गया और 3री मंजिल से कूद गया। हल्ला गुल्ला शुरू हो गया और पुलिस ने आकर के उस टीचर को भी और प्रिंसिपल को दोनों को अरेस्ट कर लिया। देखिए इसके पीछे नियत न तो प्रिंसिपल की दुर्भाग्यपूर्ण तो है ये, पर इसके पीछे जो नियत प्रिंसिपल की या टीचर की कभी खराब नहीं रही होगी। बच्चे को सुधारने के लिए अगर उन्होंने डांटा होगा, बच्चे का मोबाइल छीना है और उसके बाद उसके पेरेंट्स को बुलाया है, तो नियत तो मेरे ख्याल से इसमें खराब नहीं थी उनकी। पर इसके साथ ही पुलिस ने समय नहीं लिया, 10 मिनट के अंदर अंदर उनको अरेस्ट करके और थाने ले गई। आज भी वो अरेस्ट किए हुए हैं, उनकी जमानत नहीं हुई है। इस तरह से वही केस नहीं, बहुत सारे और भी केसेस हुए हैं, हरियाणा में भी हुए हैं। और पुलिस जो है इसमें एकदम सक्रिय हो जाती है, जिससे कि देखिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चलाने वाले जिस दर से प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, इसका मतलब वो कुछ तो अच्छा काम कर रहे हैं तभी खुल रहे हैं, तभी उनको प्रोत्साहन मिल रहा है। लेकिन ये सारी एजेंसी जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को हतोत्साहित कर रहे हैं। और जब हतोत्साहित अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होंगे तो अपने आप को बचाएंगे या पढ़ाएंगे? तो ये बड़ी दुविधा है। आज हम ये कहते हैं कि देखिए अगर कहीं गलती है, हम उसको बचाने के लिए नहीं है,
पर आप उसका इतना बड़ा आंदोलन करके और उसको समय तो दीजिए, उसको ये तो सोचिए आपकी क्या है इसके पीछे प्रिंसिपल या किसी टीचर का या किसी और का हाथ है। जबकि कोर्ट भी कहता है किसी बच्चे को डांटना, प्रताड़ित करना, अगर उसको आत्महत्या के लिए उसको उकसाना नहीं माना जाएगा। ये कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है ये। तो हम कहते हैं कि भाई आप इंक्वायरी कीजिए, समय दीजिए और उसके बाद उसके नियत तो देखिए। अगर नियत अगर खराब है तो कोई दुश्मनाई तो होगी नहीं, कोई शत्रुता तो बच्चे के प्रति है नहीं, न पेरेंट्स के प्रति है, क्योंकि वो हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे लिए रोटी का संसाधन है। हम किसी बच्चे को हतोत्साहित नहीं करेंगे, ना पेरेंट्स को करेंगे, परंतु इसके बावजूद भी सर ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन जी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ जी इसमें एक ही चीज कहना चाहेंगे कि मेरी हाँ बात जी सुनो, जी किसी का बच्चा आ गया है, अगर मैं अपने बच्चे को स्कूल के अंदर भेज रहा हूँ तो मेरे बच्चे की गार्डियन अगर पेरेंट चला गया तो गार्डियन आई थिंक ये ना सर डिबेट ठीक है जी, ठीक है। हमारी तो सिर्फ यही डिमांड है जी, इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको सारा होगा। सर चार्जशीट में आ हाँ जाए जी, हाँ नेचुरल, हाँ जी। नहीं अभी चार्जशीट नहीं हुई है, आज ही हमारे मंत्री 90 दिन हो गए। है नहीं, 90 दिन अभी हवालात में रहेंगे, 90 दिन में चार्जशीट तो पहले इन्वेस्टिगेशन तो कर दो। तो इन्वेस्टिगेशन में चार्जशीट चलो ठीक है सही। ठीक है जी। सर आपने बच्चे पढ़ाए हाँ जी। जी ਜਿਹੜਾ एक हाँ CBSE जी वाला बच्चा। हाँ जी हम दोनों दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। अब आपने एक चर्चा की है कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम ICSE में शिफ्ट हो जाएंगे या किसी और बोर्ड में भी। अक्सर हम लोग भी कहते हैं मम्मी या तो माध्यमिक नाम के बात ये नाम के नाल नहीं रेगुलर ना इस तरह दियाँ आप समझदार हो सर, आप बिल्कुल समझदार हो, बात को समझते हैं आप जो आप कह रहे हैं। नहीं बिल्कुल ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨਸ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ 45 ਬੱਚੇ ਐਡਮਿਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, CBSE ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜੀਏ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 48 ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਅਲਾਉਡ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਲਾਉਡ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵੀ ਲੈਣ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੌਜੀਕਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 10+2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, CBSE ਨੇ 10 ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ CBSE ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ 5000 ਫੀਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸੀਜਨ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਆ ਹੁਣ ਆਊਗਾ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਸਤ 'ਚ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀ ਆਊਗਾ ਜੀ? ਵੀ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਗਾ ਉਹ 10 ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗਾ? 4 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ CBSE ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲੌਜੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ ਆ, ਜੈਨੂਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। 45 ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਜੈਨੂਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਬੱਚੇ डायरेक्ट एडमिशन वाले डिनाई किए जेन्युइन प्रॉब्लम है। एक चीज ऐड करूँ सर मैं जी, एक चीज ऐड कर दूँ? हाँ हाँ प्लीज प्लीज। अच्छा हाँ जी हाँ जी यस। नंबर ऑफ 3000 आपने बताए हैं कि तीनों स्टेट्स को मिला के हैं या सिर्फ ट्राई सिटी को मिला के? तीनों स्टेट के हैं, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़। कितने बच्चे इम्पैक्ट होते हैं इस डिसीजन से? कितने स्कूल और कितने बच्चे इम्पैक्ट होंगे? सर हमारे 3000 स्कूल हैं तीनों स्टेटों में, हमारे जो एसोसिएशन में मेंबर हैं, CBSE और ICSE के स्कूल हैं।
और सभी पुराने एलीट स्कूल हैं सभी शहर में, और हम ये लगाएं कि 1500 बच्चा एक एक स्कूल में, एवरेज अगर बात करें तो 1500 बच्चा एक स्कूल में पढ़ता है, तो लाखों बच्चे इस तरह से इफेक्टेड होंगे इससे। और ये पैन इंडिया की प्रॉब्लम है सर, ये खाली ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके साथ, ये पूरे इंडिया में है, ये यूपी के अंदर, राजस्थान के अंदर, कहीं पूरे यूपी के अंदर है ये। इलेक्शन करके है सर, है सर? इलेक्शन ईयर है नहीं। एक और जानना चाहूंगी, हाँ जी। जैसे आप पंजाब हरियाणा वाले हाई कोर्ट जा रहे हैं, पूरे देश में है तो सुप्रीम कोर्ट का क्यों नहीं आप शरण लेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक बार लगाएंगे तो शायद जल्दी डिसीजन हो जाए, पूरे देश के लिए हो जाएगा। डायरेक्ट नहीं जा सकते, डायरेक्ट नहीं जा सकते। supposed to through to the High Court. First you have to knock to the High Court, then you are supposed to go to the High Court. कब तक फाइट करने का है आप? एक या 2 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ रेडी है। मतलब इस वीक के अंदर हमारा केस अप्लाई हो जाएगा प्रोसेस में। अब मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ सर, आज गवर्नमेंट कहती है ईज ऑफ डूइंग, लेकिन अभी कुछ टाइम से ईज ऑफ डूइंग की बजाय ना ईज ऑफ चैलेंज बनता जा रहा है, क्योंकि आज सीबीएसई के अंदर कहते हैं कि आप अपनी ज़मीन का एक सर्टिफिकेट लाओ और इस स्पेसिफिक सीबीएसई प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिक नोट में लाओ। अब आप तहसीलदार के पास जाते हो, कहते हैं स्पेसिफिक नोट के अंदर अब हमारे को ज़मीन के और लेके दो। हर ज़िले के अंदर हर जगह पर अफसर अपने तरीके से चलते हैं, वो कहते हैं चल दौड़ दिया, क्योंकि कहता भाई कहता हाउ कैन यू डिक्टेट मी, हम तो वो सीबीएसई कहता है कि उन्होंने अपना सिस्टम ऐसा बना रखा है, सॉफ्टवेयर ऐसा कि उसके अलावा फिगर लेता नहीं है वो, तो इसकी समझाने बात कही है उनको। मैंने कभी प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं, आप इस सिस्टम को इजी करें। कुछ चीज़ें इजी की भी हैं ना, सीबीएसई को हम अप्रिशिएट करते हैं, कुछ चीज़ें बहुत इजी की हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि चैलेंजेस बने हुए हैं, और जो छोटी छोटी फाइनेंस से जोड़ करके एक दिन किसी का फॉर्म लेट हो गया तो उसके ऊपर बहुत मोटा अमाउंट चार्ज लगा दिया, तो उसके समय हम चाहते हैं कि इसको इजी किया जाए, क्योंकि आप सर्टिफिकेट लेने के लिए जाते हो, फायर का सर्टिफिकेट लेने जाओ या आप बिल्डिंग का सर्टिफिकेट लेने जाओ, दैट इज़ ए चैलेंज, अपने आप में टाइम लगता है उसके अंदर, और टाइम के साथ साथ आपको पता है कि सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें और भी इन्वॉल्व हो जाती है कई बार, तो वो उसकी वजह से, क्योंकि सभी के सभी उसी हर 5 साल बाद हर स्कूल को रिन्यू कराना है, और वो कहते हैं कि अब रिन्यू आपको दोबारा फिर उसको कराना है। एक बिल्डिंग बनी हुई है, उस बिल्डिंग को बनी हुई है फिर दोबारा क्यों करा रहे हैं? उसके कोई ना कोई टेन्योर बना दिया जाए कि भाई आप 10 साल के बाद रिन्यू करा लें, समझ आती है 10 साल बाद बिल्डिंग का चीज़ें रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती हैं, तो उसके अंदर हमारा ये है कि इसको डूइंग ईजी करें, और हमारा ज़्यादातर टाइम और फोकस है ना एकेडमिक पे लग सके। हमारी यही प्रार्थना है इस बार आपके माध्यम से कि ये प्रॉब्लम चैलेंजेस आ रहे हैं, ये सॉल्यूशंस हों। इसके अलावा इंस्पेक्शन भी आती है सीबीएसई की हर साल, तो क्या वो भी कुछ आपको बोलते जाते हैं ऐसा, जैसे आपने बोला 5 साल बाद? नहीं, अब इंस्पेक्शन कमेटी का इन्होंने ख़त्म कर दिया है, ऑनलाइन इन्होंने डॉक्यूमेंट मांगते हैं, ऑनलाइन सबमिट कर दिया। अगर आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया तो सेम डे या नेक्स्ट डे आपको लेटर इशू कर देंगे। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इसको हमने अप्रिशिएट किया, हमने लेटर लिख के भी बेसिक कहा, लेकिन वो जो लेटर सबमिट करने के बीच के अंदर कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि सीबीएसई सोचती कि आसान है, लेकिन पूरी डेमोग्राफी के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग स्टेट के अंदर डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस हैं, वो एक प्रॉब्लम आ जाती है उस लेवल पर आकर। मैम ऐसा है कि यहाँ पर हर किस्म के स्कूल हैं, कोई अर्बन एरिया में भी है, आपके रूरल एरिया के अंदर भी है, उसकी ज़मीन गवर्नमेंट अलॉटेड भी है, कुछ ज़मीन ऐसी है एग्रीकल्चर लैंड को CLU लेकर कराई गई है, अलग अलग लेवल के हैं, उनमें बहुत सारी उसमें चीज़ें आ जाती हैं, तो वो चैलेंज आते हैं। क्यों मान लो एक इसमें रूरल एरिया के अंदर एक स्कूल चल रहा है, उसके अंदर बड़े लिमिटेड से बहुत कम से फीस के अंदर स्कूल चल रहा है, सीबीएसई का स्कूल चल रहा है, क्योंकि आज क्रेज भी है सीबीएसई का लोगों के अंदर, बच्चे उसमें चल रहा है। अब उसके लेवल पे वो सर्टिफिकेट इशू कराना उसके लिए प्रोजेक्ट बन जाता है, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है। मान लो मैं व्यक्तिगत अपने स्कूल की बात करूँ, मुझे चैलेंज नहीं आता, मान लो किसी और 500 मेंबर है, उनमें से 50 लोगों को 100 लोगों को अलग जो ATM काम चल रहे हैं उनको चैलेंज आता है। हम कहते हैं इसको सिंप्लीफाई किया जाए। और चंडीगढ़ की बात करें तो 93 स्कूल ऐसे हैं जो स्लम एरिया में बसे हुए हैं और इन स्कूलों के पास प्लेग्राउंड तक नहीं है जी, इनका क्या करोगे? छोटे बच्चों के लिए बहुत बड़ा एक रिस्क है, आग लग जाए बच्चों को भागने के लिए रास्ता तक नहीं है। मैडम हम सिर्फ ये कहते हैं जो पुराने स्कूल हैं
उनके लिए एग्जिस्टिंग स्कूलों की हरियाणा में भी एक अलग पॉलिसी बनी हुई है एग्जिस्टिंग स्कूल्स की। जो पुराने स्कूल हैं उनको बड़ा नहीं किया जाता था, मगर पर बच्चा उनकी Extension। स्क्वायर फीट उनको जगह अलॉट की हुई है। अभी आपके पास अगर क्लासरूम में इतनी जगह तो इतने बच्चे आप बैठा सकते हो। छोटे छोटे जो मुद्दे हैं, जैसे फायर एनओसी हरियाणा में वो 3 साल के लिए बाद रिन्यू होती है, मगर जो CBSE PWD का सर्टिफिकेट मांगता है हमारे से बिल्डिंग सेफ्टी का, वो हर साल मांगता है। एक बिल्डिंग जो बनती है कम से कम उसकी लाइफ 50 साल तो होती है ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है। अगर हर साल हम PWD में अप्लाई करेंगे, जबकि फायर एनओसी अब 3 साल के बाद रिव्यू शुरू होगी, तो हमें है जो बिल्डिंग सर्टिफिकेट भी जो पहले अप्रूव्ड इंजीनियर से मांगा जाता था, अब वो PWD से ही मांगा जा रहा है। तो अगर एक बिल्डिंग बनती है तो कम से कम उसको मिनिमम 10 साल का तो सर्टिफिकेट इशू हो। हर साल अगर हर साल हम सरकारी उसमें फाइलें लगाएंगे तो सरकारी दफ्तर में फाइल लगाने का मतलब हम सब समझते हैं, हम इन चीज़ों से गुजरे हुए हैं। और दूसरी बात मैडम, जो CBSE अपने फॉर्मेट देता है, अब फायर एनओसी हरियाणा के अंदर जो है वो ऑनलाइन निकलती है, एक सेम फॉर्मेट निकलता है उसमें। अब CBSE कहता है नहीं, हमें सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में चाहिए, या तो वो स्टेट को भी करे, ठीक है, वो काम हमारा तो नहीं है ना। हमने ऑनलाइन फायर एनओसी ली, हमें ऑनलाइन सर्टिफिकेट आ गया इंस्पेक्शन के बाद, मगर वो जो सर्टिफिकेट है वो कहते हैं परफॉर्मा हमारा होना चाहिए जी, इनका नहीं चलेगा। तो उसमें हरास तो हमें हो रहे हैं। एक सवाल है, बच्चों का एडमिशन आप मेरिट के आधार पर क्यों नहीं करते? बिजनेस ही ना बनाओ ना, थोड़ा सा ऊपर पर हो। गवर्नमेंट का भी सिस्टम यही है, गवर्नमेंट मॉडल स्कूल है, बाकी जो प्राइवेट स्कूल में, मैं चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ, यहाँ भी मेरिट के बिहार पे मतलब सारा कुछ होता है, उनका मतलब वाइवा होता है, सारा कुछ मतलब पूछा जाता है। तो आप ये स्टैंडर्ड मतलब अडॉप्ट करने से क्यों कतरा रहे हैं? आप अपनी परेशानी से बता रहे हो। बच्चों की मतलब जो बच्चे आगे बढ़ने वाले हैं उनको आप प्रमोट करो। सारी दुनिया को लेकर आप साथ मतलब आगे तो नहीं जा सकते ना। फिर तो युवा क्या आप अपने बिजनेस को मतलब प्रमोट करने के लिए लगे हुए हैं, बच्चों का ध्यान ही नहीं है। नहीं, बच्चों को सर, बच्चों का एक बात सुनो सर, 50% बच्चा प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं और क्वालिटी दे रहे हैं, तभी पेरेंट्स हमारे पर विश्वास करते हैं। अगर हम अगर हम नहीं अच्छा पढ़ा रहे तो पेरेंट्स अगले साल बच्चा निकाल लेगा हमारे पास। मैं सर आपका क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये है कि जो एडमिशन प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। आप ये कहने का मतलब यही है? आप स्पेशली चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं सर, आप बताइए सर क्या कहना, क्या पॉलिसी है चंडीगढ़ हमारे? 8th तक तो कोई इंटरव्यू अलाउड ही नहीं है, कोई रिटन एग्जाम अलाउड ही नहीं है। तो ऐसे में हम क्या करें? कहाँ से लाएं सबूत? यहाँ आने में मेरे को चेक किसी ने किया। नहीं, आपके स्कूलों में होता है सर। जब बच्चे का इंटर मेरे बेटे के साथ हुआ था, मैं दूसरे की ट्यूटर, फर्स्ट क्लास का पूरा स्टैंडर्ड चेक किया गया था उसमें। सिंह साहब सारे की बात करो। हाँ जी, चलो मैं ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 25% ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਵੀਕਰ, ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਪੜਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6500 ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10 ਵਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੀਇੰਬਰਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ, DEO ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਪਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਊਗਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੂਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਜੀ RT ਤਹਿਤ 25% ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ 2-4 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ? ਸਾਰਾ ਬੱਚਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਸਕੂਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ 1500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੈਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਯੈਸ, ਹਾਂਜੀ,
नहीं ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ 6500 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ मैं दसना चाहना कोरोना तो बाद उल्ट पोजीशन हो जाने शुरू। सर मैं कह रहा हूँ हमने मुद्दे डिस्कस कर लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ करते हैं, अब हम थोड़ा कैजुअली डिस्कशन में बाद में शुरू हो जाते हैं। ठीक है सर। तो CBSE स्कूल्स की एसोसिएशन, हरियाणा से हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस, पंजाब से फेडरेशन स्कूल और चंडीगढ़ से इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन, इन तीनों स्कूलों ने मिलकर, तीनों एसोसिएशन के स्कूलों ने मिलकर के, एसोसिएशन ने मिलकर के CBSE से आ रही समस्याओं को चैलेंज किया है। पहले हमने लेटर भी लिख दिया है, हमने आपके माध्यम से आज मीडिया के माध्यम से भी हम बता रहे हैं, और हम कोर्ट में भी चैलेंज करने की कोशिश करेंगे, इसको करने जा रहे हैं। और क्योंकि जो स्कूल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एक सेक्शन इंक्रीज करने के लिए भी, बच्चों को नंबर्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे को रोका जा रहा है। हमारे सेक्शन को बढ़ाने के लिए 75,000 एक सेक्शन इंक्रीज करने के लिए हमारे ऊपर इसका डिमांड की जा रही है। हम चाहते हैं कि CBSE इसको विड्रॉ करे और सेक्शन ओपन करने की खुली परमिशन दे, और कुछ गाइडलाइन प्रॉपर बना के दे। अगर मान लो कहीं से कोई चीज़ कंट्रोल भी करनी है, वो इनिशियल पॉइंट से करे, नर्सरी से स्टार्ट करे कि नर्सरी के अंदर आप 3 सेक्शन या 4 सेक्शन लेके आओ, और वही उससे आगे बीच में सेक्शन मत बढ़ाओ। जो पहले से पुराने टाइम से अंदर मान लो किसी स्कूल के अंदर 4 सेक्शन हो सकते हैं, 3 सेक्शन हो सकते हैं, 5 सेक्शन हो सकते हैं, उनको साल के बीच के अंदर किसी भी स्कूल में किसी सेक्शन को कम नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमारे CBSE के आपके माध्यम से यही प्रार्थना है कि स्कूल्स के सेक्शन को कंटिन्यू किया जाए, और ओएसिस के अंदर ये प्रोविज़न किया जाए, प्रावधान किया जाए कि स्कूल्स उसमें कंफर्टेबली अपने सेक्शंस को लोड कर सकें। और जो नंबर है 40 की वजह 45 कर दिया जाए, 45 से 50, क्योंकि कोई रिमोट एरिया में स्कूल है, वहाँ पर चैलेंज डिफिकल्ट 50 तक की स्ट्रेंथ को अलाउ किया जाए। और ये अभी जो 3 साल की इन्होंने छूट दी है, इसको परमानेंट कर दिया जाए।